T1 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एनसीसी गार्ड के निरीक्षण के लिए हजरत। They are almost 22 and they are more and so for the number of people support and guidance going with funds and so for today's function is inter-college competition being organized by before any important event. So let's dedicate a prayer to Ma Saraswati. For that, I would like to I would like to extend my greetings to our Honorable Chief Guest, Shri Rahul Pandey Ji, Deputy Commissioner, Kathua, worthy Principal Professor Sumnesh Jasrotia, senior faculty members, fellow colleagues, and dear participants. On behalf of GDC Kathua, we express our gratitude to our esteemed Chief Guest for the occasion. Sir, we are highly delighted to have you amongst us. Chief Guest, worthy Deputy Commissioner, Kathua, Shri Rahul Pandey Ji, IAS, faculty members of Government Degree College, Kathua, jury members from different colleges, participants from different colleges of district Kathua. The college, his support staff, all the teachers, the faculty members who have come from other colleges, and the students who are the life of any educational institution. I consider it my proud privilege to be part of this program, and I thank the institution for inviting me as the chief guest for this program. बहुत अच्छा लगता है किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने में और ख़ास तौर पे इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनने में, because it takes you back. It reminds you of your days, and it also reminds you of how you used to take part in such competitions, and from there where you have come. So सबसे पहले जिन भी लोगों ने आज इस प्रतियोगिता में भाग लिया, all those who participated today in these events, in these competitions, my best wishes to you. Participation is always more important than winning, and if you are participating, then that means that you are going to do something good in your life. I also congratulate the institution and all the associated colleges who participated in this kind of an event, because that also shows, and particularly I would want to mention it now that the principal mentioned that the number of girls is higher in the college. I think it is always a sign of more vitality. I will also always consider an institution with a higher ratio of girls to be again performing better. So my congratulations to you and your team, all the teachers who are doing such a wonderful job here, and to again all the respective colleges also who have participated here. To all the students who are sitting here, we are going to celebrate the 75th independence. And the reason why we are celebrating it as Azadi Ka Amrit Mahotsav is to remind ourselves that we are having this discussion in a free environment because our forefathers laid down their lives once. So what we need to understand is that this freedom came at a cost, and we need to remember it and cherish it.
जी सर बताएं, आज जो कार्यक्रम किया गया किस विषय पर? मैं प्रोफेसर सुमनेश जसरोटिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। आज हमारे इस कॉलेज में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। इस कंपटीशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 9 कॉलेजेस हैं सब ने पार्टिसिपेट किया है। ये डिबेट का कंपटीशन था, ऐसे राइटिंग था और उसके साथ सिंगिंग कंपटीशन था। हर एक कॉलेज से हर कैटेगरी में एक स्टूडेंट उसके लिए बुलाया गया था। ये डायरेक्शन जो है हमें हायर एजुकेशन की तरफ से आई है कि आपने डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर कॉलेज होगा उसको ऑर्गेनाइज़ करना है एक ऐसा कंपटीशन। तो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट डीसी डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राहुल पांडे जी थे और सर ने हमें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट किया जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कंपटीशन में भाग लिया। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर का कि हम जो कॉलेज है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और हमें गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं ऐसे जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन को रन करने में, स्मूथ रनिंग में। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी एक कॉलेज की कमेटी थी, डिबेट कमेटी, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था ये वाला कंपटीशन। और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो बनी का कॉलेज होगा, बिलावर होगा, बसोली होगा, महानपुर होगा, मडीन था, रामकोट था, ये और GCW कठुआ था, हीरानगर था और कठुआ कॉलेज हमारा बॉयज़ कॉलेज, ये भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। और ये जो स्कीम है बच्चों को पार्टिसिपेट करने की इस कंपटीशन में, ये बहुत अच्छी स्कीम थी क्योंकि इसमें कैश प्राइजेज़ जो थे वो बड़े अच्छे कैश प्राइज़ था। जो फर्स्ट होगा, जो उसमें विनर होगा उसका 5000 था और जो रनर अप है वो 3000 है। तो तीनों कैटेगरीज़ में अब ये बच्चे जो हैं इसके आगे जाने वाले हैं और डिविजनल लेवल पे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वहाँ जो है वो प्राइजेज़ थोड़ा और ऊपर के चले जाएंगे और वहाँ जो नोडल प्रिंसिपल होंगे हमारे वो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो इन बच्चों का आगे पार्टिसिपेशन जो है, ये आज़ादी अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो है उसी के तहत ये चल रहा है। ऐसा जैसा कंपटीशन ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। आज़ादी अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन से क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो भावना जागेगी, हमें आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है वो किस तरह से मिली है। तो चाहे वो बच्चे उसके नेट के थ्रू सर्च मार रहे हैं या अपना उसको अपने टीचर्स की गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो ऐसे है या वो सिंगिंग कंपटीशन है। सिंगिंग में हमारी जो कमेटी है इन्होंने क्या रखा था, पैट्रियटिक सॉन्ग कंपटीशन रखा था। देशभक्ति के गाने थे, बहुत मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ लिया। सब ऑडियंस जितनी भी थी अपने देशभक्ति के रंग में रंग गई थी जिस तरह से पैट्रियटिक सॉन्ग कंपटीशन होता है ये। और जो हमारा इसका थीम था, इसका ऐसे राइटिंग का और ये हमारा डिबेट का, ये था रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बड़ा टिपिकल टॉपिक जो हम लोगों ने चूज़ किया होता कि ज़्यादातर इंडियन साइंटिस्ट जो है, इन लोगों का रोल किस में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। कभी नाम में ये नहीं आए। जब आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हो, आप महात्मा गांधी की बात करते हो, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हो, आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हो और फ्रीडम फाइटर्स जितने भी उनकी बात करते हो, मगर फिर इंडियन साइंटिस्ट जो है इनका नाम कभी नहीं आया। तो ये हमने इस तरह से रखा कि ताकि ये पता चले कि इंडियन साइंटिस्ट उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे। उस वक्त क्या था कि जितनी भी लीडरशिप थी ये सब लोग इंडियन साइंटिस्ट जो इनको इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटेन था वो बड़ा पावरफुल था और वो मॉडर्न था और वो सारी मॉडर्नाइज्ड चीज़ें, इक्विपमेंट या वेपन या जो भी उनके पास अवेलेबल था, तो हम लोग गुर्बत में थे। तब ये सोच साइंटिस्ट को मैं बोलूँगा कि बहुत ज़बरदस्त सोचा उन्होंने। तब उन्होंने सोचा कि हमें जो भारत को है जो है इसको आगे उठना कैसे है। तो जो साइंटिस्ट है वही इसको उठा सकता है और इसको कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ा मेन चीज़ होगी, उसी से देश जो है वो तरक्की करेगा। तो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बराबर हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हम कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बराबर अप्रिशिएट करते हो और बच्चे जो है इससे एनकरेज होते हैं कि हमारा मीडिया में जो प्रोजेक्शन मिलता है स्टूडेंट्स को। थैंक यू।